So hello guys, today we will discuss about the topic of ninth ICSE difference between the object oriented programming and procedure programming. So guys, I am your best teacher of computer Abhishek Shukla of class 9th ICSE. So let's get started. So firstly, we will discuss about the object-oriented programming. What object-oriented programming? So, देखिए object-oriented programming. In the object-oriented programming, task is divided into the number of objects. जो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है उसमें टास्क जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में डिवाइड होते हैं. ईच ऑब्जेक्ट है मतलब हर ऑब्जेक्ट की डाटा मीन्स प्रॉपर्टीज होती थी, फंक्शन बिहेवियर्स होता था. Function behaviors. The data of an object can only be accessed by the function associated with the object. Okay, the object may communication with each other through function. Okay, फर्स्ट इसमें हम लोग डाटा में स्ट्रेस ज़्यादा देते हैं, फंक्शन में कम देते हैं. मेक प्रोग्राम सिंपलर डिवाइडिंग इट इनटू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यूज बॉटम टू अप्रोच. और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एग्जांपल है वो C++, जावा, स्मॉल टास्क, सिमुला 67. एंड देन we will discuss about the POP. POP means procedure oriented programming. What? Procedure oriented programming. So in POP the program task is divided. जो POP में टास्क जो डिवाइडेड होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोसीजर्स पे डिवाइडेड होते हैं. किस पे डिवाइडेड होते हैं? नंबर ऑफ प्रोसीजर्स पे. तो हेलो, तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ गाइज लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें. हमारा चैनल सब्सक्राइब करें. प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए तो हम आपको बना के देंगे. ओके, देखिए POP. इन POP द प्रोग्रामिंग टास्क वाज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ प्रोसीजर्स. जो POP में जो टास्क डिवाइड होते हैं प्रोसीजर पे डिवाइड होते हैं. और प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन और मेथड. अब प्रोसीजर जो प्रोसीजर होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है पार्टिकुलर टास्क के लिए. तो इसके एग्जांपल देखो, एग्जांपल है C और पास्कल. देन we will discuss about program. So what is program? A program is a set of instruction. A program is a set of instruction which we given to computer to perform a specific task. मतलब जो प्रोग्राम होता है वो इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जिसके जो प्रोग्राम होता है और जो प्रोग्राम होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसके द्वारा हम कोई भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर में. ओके, देन व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? What is programming language? What is programming language? तो programming language has a own set of rules which is referred to syntax programming. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके खुद कुछ रूल्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स होता है. ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट प्लीज़ गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. देन वी विल डिस्कस अबाउट द principles of OOP. What? Principles of OOP. The principle of OOP is first is class, second is object, third is data abstraction, fourth is encapsulation, fifth is inheritance, sixth is polymorphism, and seventh is message passing. What? Class, object, data abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism, messaging. Then we will discuss about line by line. First is class. To find where it is class. तो इसमें क्लास का डिफिनेशन नहीं दिया गया. देन वी विल टॉक अबाउट. मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, मैं आपको समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज क्लास. क्लास क्या होता है? ये क्लास इज अ ग्रुप. ये मेरे क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप्स. व्हाट? Class is a group of objects that shares common properties and relationships. Okay. Then second one is object. Object is unique identity. Object is an identifiable entity with some characteristics and behavior. Let's another definition understand. Object is a unique identity
entity with some properties and behavior. It is an ये जो class का it is an instance of class. Okay. And attributes are the properties are used to define an object and to differentiate one object from another object. मतलब जो एट्रीब्यूट होता है उसमें हम लोग डिफरेंस निकालते हैं वन ऑब्जेक्ट से और अनदर ऑब्जेक्ट. और बिहेवियर क्या होता है? द फंक्शन और एक्शन विच एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म. जो फंक्शन और एक्शन होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का परफॉर्म जो करता है उससे हम लोग बिहेवियर कहते हैं. देन द थर्ड वन इज व्हाट? द थर्ड वन इज data abstraction. Then we will come on the topic of data abstraction. The act of representing is a real feature without including background detail and data abstraction. data abstraction ये होता है जैसे कि हम लोग को बैकग्राउंड डिटेल ना दिखाए और हम लोग बिना बैकग्राउंड डिटेल को दिखाए हुए हम लोग को उसकी पूरा रिप्रेजेंट कर दे. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू take the example of sound recorder. If we take the sound recorder has in sound recorder many of the objects such as tape recorder, DVD, CD players, or many things. But we don't see. But according to abstraction, we don't see. Only we see the one things. What is one thing? One thing is that दिस इज रेडियो. तो मतलब कि जो उसकी हम जैसे रेडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ उसके हम लोग बैकग्राउंड डिटेल नहीं जानते. हम लोग क्यों नहीं जानते? उसमें गाना सुना पड़ा हुआ है कि स्क्वायर की तरह होता है. ओके. इट रिमेन्स कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट ऑल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन लाइक हाउ द वाइल. जैसे व्हीकल्स हो गए, व्हीकल्स गाड़ी के एग्जाम्पल उसमें हम लोग को चलाते हैं. अब अंदर तो देखते नहीं कि हम लोग कहाँ कौन सा कार कहाँ से गया. ओके. तो इसकी शॉर्ट आप लेके समझ लीजिए. एंड द थर्ड वन है वो है fourth one encapsulation. What encapsulation? Okay, we will understand about encapsulation. Wrapping up of a data member and the member function together into a single unit. मतलब रैपिंग अप का मतलब जो जैसे बहुत सारी चीज़ है उसको हम लोग रैप करके एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लें उसे हम लोग इंसैप्सुलेशन कहते हैं. ओके. wrapping up of data members and member functions together into a simple unit is known as encapsulation. Ensures that a user cannot access the data without proper authorization. It also ensures that data can be accessed by a function with the different. जो इंसैप्सुलेशन होता है उसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें उसको हम लोग रैप करके एक सिंगल में कन्वर्ट कर दे उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंसैप्सुलेशन कहेंगे. देन वी विल कम ऑन द टॉपिक विच इज इनहेरिटेंस. Ability of a class to inherit properties from another class is known as inheritance. The new class will have the features both the classes. मतलब जो एबिलिटी ऑफ क्लास जो क्लास की एबिलिटी होती है इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी शो करती है अनदर क्लास के साथ उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस. देन वी विल कम ऑन द पॉलीमॉर्फिज्म. व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म इज आवर फर्स्ट टॉपिक. पॉलीमॉर्फिज्म. देन ओके पॉलीमॉर्फिज्म. मैं आपको ऐसे बता दें वी विल नॉट फाउंड द पॉलीमॉर्फिज्म बिकॉज इट इज मतलब पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक लगता आ नहीं पाया तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म. Polymorphism is nothing proper. Polymorphism is nothing. Polymorphism, the property by which the same message can be sent to object of several different class and each object can respond in a different way depending on its class. Okay, I will try again. I will understand. Try again. Property by which the same message can be sent to an object of several different classes and each object can respond in a different way depending on its class. Okay, student. Then we will come on upon our last topic, which is message passing. What message passing is here? An object can interact with other object by passing message. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट मैसेज पास करके तो होता है. ओके. दिस इज कैन डन कर बाय द कॉलिंग मेंबर. ये हम लोग किस तरह के कॉलिंग फंक्शन के द्वारा कर सकते हैं. ओके. दिस इज नोन एज इसी को हम लोग मैसेज पासिंग बोलते हैं. ओके. देन ये इसका बेस हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस है. इसका बेस और ले लीजिए. सो गाइस ये था हम लोग का आज का वीडियो. प्लीज़ हमारे चैनल का नाम है सुपर नॉलेज पॉइंट. आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. प्लीज़ दोस्तों अगर आप इसी तरह लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन
जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। बाय। और कमेंट में लिख के बता दीजिए कि आपको अगला टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए। ओके।